The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके. पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए. बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो. ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा. पहली डिमांड. दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है. कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए. और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है. जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी. और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए. सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है. इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है. तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड फाइनल थिंग, I am proud of you. You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. पंद्रह 16 मेट्रो बंद. देखिए, कर रही है बच्चों को कि आप पार्टिसिपेट ना करें. yes, this is all the system that is attacking them. I told them inside, I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire
Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें, बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो, हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह, इससे कोई नहीं लड़ सकता. नरेंद्र मोदी is India's past. The past can never fight the future. Thank you. Thank you. Get well soon. Do physiotherapy. Thank you. Do you want me to get you some advice on that? Huh? Okay, I'll get you some advice on that. I'm an expert of these things. Okay. Thank you, guys. Thank you. You want to say something? I don't know. I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है. एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट. और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे. साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो. लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं. और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं. No step back on Dharmendra Pradhan's resignation. No change in ministry. No bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. कोई भी accountability 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी. इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है. और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज दहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है. उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी. ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स हैं. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you. तो आप सुन रहे थे यहां पर छात्राओं का, पीड़ित छात्रों से सरकार माफी मांगे. राहुल गांधी ने यहां पर साफ साफ कह दिया है, पीड़ित छात्रों से सरकार माफी मांगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा मंत्रालय न दें. राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इस्तीफा दें, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. राहुल गांधी का इस वक्त का यह बड़ा एक तहलका, एक धमाका कह सकते हैं. छात्रों की मांग सुझावों की नहीं है, यहां पर छात्रों की मांग एक्शन की है, सुझाव की नहीं बल्कि एक्शन. यहां सुझाव नहीं, एक्शन चाहिए. साफ साफ राहुल गांधी ने कहा है. छात्रों के ऊपर हुई लाठीचार्ज की बात, पीड़ित छात्रों से सरकार माफी मांगे. यहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा. राहुल गांधी ने यहां पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जिसमें उन्होंने साफ साफ, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि और राहुल गांधी के साथ नेहा वोरा थी, आयशा की
की चीफ नेहा बोरा ने साफ साफ उन्होंने भी अपनी बात कही। उन्होंने भी राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कि छात्रों की आवाज आपने उठाई, थैंक यू सर। एक बार फिर से जरा सुना सकते हैं तो ले आइए राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो साथी नहीं सुने। नेहा बोरा ने जो कुछ कहा है उसको भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ने जो बातें यहां रखी हैं, अभिजीत दिपके अगर अभी बीमार हैं तो राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे थे। गुड मॉर्निंग। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done. सर इज मोस्ट फ्रूटफुल। ऐसे डिस्कशंस जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। तो सुन रहे थे आप यहां नेहा बोरा को अभी, और इनसे पहले राहुल गांधी के साथ नेहा बोरा आई है उनकी टीम के, और इसमें से 3 लोग तो ऐसे थे जो अमर अनशन पर बैठे हुए थे। ये सारे, इस बीच जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, जंतर मंतर से जो खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जंतर मंतर में लीड करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, और वो अभिजीत दिपके, उनको टाइफाइड हो गया है, डॉक्टर ने सलाह दी है आराम करने की, लेकिन मोर्चा बाकी लोग संभाले हुए हैं। और इस बीच उधर पटना में, बिहार में आज वाम दलों ने घोषणा की थी पूरे बिहार बंद की, और ये इस घोषणा पे भी अमल हो रहा है। बिहार आज बंद करवाया जा रहा है। बिहार की तस्वीरें आप तक, ये पटना की तस्वीरें आप देख लीजिए। पटना से हमारे साथी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पटना का सूरत हाल बताएंगे कि पटना में क्या चल रहा है। और ये बिहार बंद और उसमें पटना की तस्वीरें, अभी 2 दिन पहले हमने देखा पटना में जेन जी ने उनके ऊपर जिस ढंग से भी अत्याचार करने की कोशिश हुई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से,
उसको एंजॉय किया जेन जी ने, तो जनरेशन जी जो है, आज का जो युवा है, वो किस दिशा में और कैसे इस आंदोलन को सोच रहा है, ले रहा है, इसकी तस्वीर, इसकी बानगी आप लोगों ने देखी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें नजर आ रही थी जो हम लोगों ने देखी हैं। तो एक तरफ बिहार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार पूरा टोटली आज बंद, और उसमें पूरा का पूरा विपक्ष जो वाम दलों के साथ आ गया, यानी इंडिया गठबंधन ने बंद बुलाया है बिहार, और बिहार बंद यहां सफल होता हुआ नजर आ रहा है। डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस काफी है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो हैं शांतिपूर्ण ढंग से इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात होती है, और यह यहां पर बिहार का सूरत हाल हम आप तक रख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ आप बढ़ें तो जंतर मंतर का सूरत हाल भी आप तक हम पहुंचाएंगे। जंतर मंतर में इस वक्त क्या चल रहा है, यह हमारे साथी थोड़ी देर में। ये भिवंडी की तस्वीर देखिए आप, दूर तक ड्रोन कैमरे से आप देखिए, दूर दूर तक लोग ही लोग, और ये जंतर मंतर के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में देश भर में निकले हुए हैं। ये युवाओं के समर्थन में लोग निकले हुए, आप देख लीजिए भिवंडी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें अमलेंदु जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि यहां देखिए चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा, लोग ही लोग, खचाखच। जैसे कल रात को मैं देखा 1 लाख से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर कल थे, मौजूद थे। मैंने पुलिस वालों से भी पूछा कितने होंगे, आपके इंटेलिजेंस क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी मेरी बातों को कंफर्म किया कि 1 लाख से ज्यादा होंगे सर यहां पे। तो वो और चारों तरफ, क्योंकि जंतर में, और ये देखिए भिवंडी की तस्वीर है, और चारों तरफ लोग ही लोग, और ड्रोन कैमरे से अभी पूरा पीछे तक आप देखेंगे लोग ही लोग हैं अमलेंदु जी। लेकिन खबरें यहां भिवंडी से लेकर पूरे देश की अलग अलग, ये जो पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है वो परवान चढ़ गया है, और ये दिखाई दे रहा है, और परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये पुणे की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये देखिए पुणे की तस्वीर, अभी भिवंडी की देख रहे थे, ये पुणे की तस्वीर देखिए आप। पुणे, भिवंडी, उधर बिहार में आज बंद का आयोजन किया गया है, और वो आप देख रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की, यानी महाराष्ट्र पूरी तरह से समर्थन में नजर आता है। महाराष्ट्र और बिहार, इन दोनों राज्यों ने दिखा दिया है कि किस ढंग से आंदोलन होते हैं, किस ढंग से सरकार को झुकाया जाता है। और ये कल शाम के मुंबई शिवाजी पार्क की तस्वीर देखिए, कल शाम शिवाजी पार्क की तस्वीर देखिए, ये मुंबई शिवाजी पार्क की तस्वीर, भिवंडी की तस्वीर, पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी यही कहा जा सकता है कि और ये जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर है जहां की तस्वीरें एक अलग बयां करती हैं। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं अमलेंदु जी, इसको भी फुल स्क्रीन ले आइए, हम बात कर रहे हैं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि जो विजुअल्स हैं, हमारे साथी, हमारे जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो देखें कि क्या चल रहा है इस देश में। अमलेंदु जी बिल्कुल 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 राजीव जी, ये पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। जनता मंतर पर भी ये जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि ये सब स्वतः स्फूर्त है, किराए की लाई हुई भीड़ नहीं है मोदी जी की रैली के लिए। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ये सब बच्चे जितने भी आए हैं, सब अपने खर्चे पे आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, और एक दूसरे का कितना ख्याल रख रहे हैं ये राजीव जी देखा जा सकता है। आप देखिए कुछ छात्र अगर आराम कर रहे हैं तो कुछ छात्र खड़े होकर हाथ के पंखे से पंखा झल रहे हैं। हाँ। तो ये राजीव जी जो एक तरीके का जो भाईचारा जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ना यहाँ कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई बंदा है, ना कोई बंदा नवाज है। ये यहाँ की जो खूबसूरती है राजीव जी ये दिखाई पड़ रही है। मतलब इस नई पीढ़ी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने राजीव जी इस देश के सांस्कृतिक ताने वाने को नष्ट कर दिया था, उसको एक तगड़ा जवाब जो इस देश की युवा पीढ़ी ने इस तरीके से दिया है। ये आंदोलन सिर्फ राजीव जी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बन के नहीं रह गया है, ये इस देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का आंदोलन भी बनकर हो गया है, जिस संस्कृति को आरएसएस नष्ट कर रहा है। तो ये राजीव जी एक तरीके से इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बन गया है। पूरे देश